Now let us see the students, new chapter, 11th standard students, chapter 7, systems of particles and rotational motion. I will start from the article 7.5, rotational motion. In the previous part of this chapter, systems of particles will be learned by you from Prashant Vedya. So now the article 7.5, vector product of two vectors. You have studied in the earlier lesson scalar product of two vectors, vector A dot B equal to AB cos theta. And this scalar product of two vectors gives the new physical quantity as a scalar quantity. But this vector product of two vectors gives the new physical quantity as a vector quantity. And as it is vector, it has two things, magnitude and direction. Now, the vector product of two vectors like A and B is defined as vector A cross B equal to magnitude of A, magnitude of B into sine theta into unit vector n. So where A and B are magnitudes of vector A and B, while theta is the angle between the two vectors. And this unit vector n is in the direction perpendicular to the plane formed by vector A and B. It means if you say vector A cross B equal to vector C, then this new vector C has two things. One is magnitude. Magnitude of this vector C equal to magnitude of A cross B equal to B sin theta. And this vector C is in which direction? This vector C is in a direction perpendicular to the plane formed by vector A and B. How it can be determined? The direction of new vector C, that means direction of this unit vector n, can be determined by two methods. Number one is right-handed screw rule method, and another is simply right hand. So first you try to understand how the direction of vector C can be determined by using the right-handed screw rule. You consider this kind of a screw. This is the head, this is the tip of the screw. You keep the screw is like this one. That means if vector A is in this direction, vector B is in this direction, then plane formed by vector A and vector B will be horizontal plane. And perpendicular to this horizontal plane is vertical direction. So along the vertical direction you keep the screw like this one, such that its tip remain on the top position, its head remain on the bottom position. You can see here. You can also understand this diagram by a simple instrument like this one. If you say this is the vector A, this is the vector B, then this one is the plane formed by vector A and vector B. And now you keep the screw is like this one, passing through the common point of vector A and vector B. And this screw you have to keep it in such a way that its head remains at bottom, its tip remains on the up position. Then if you want to determine the direction of vector A cross B, तो ये पहला वेक्टर A है, ये दूसरा वेक्टर B है, तो आपको A को पकड़ के B की ओर घुमाने का. अब इसकी डायरेक्शन देख लेंगे कौन सी मिलेगी, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज. तो A को पकड़ के B की ओर घुमाएंगे तो आपको ये डायरेक्शन मिलेगी. ये डायरेक्शन मतलब आप देखेंगे यहाँ पे क्लॉक रखेंगे तो इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि ये नंबर 12, ये नंबर 6, ये नंबर 3, ये नंबर 9. तो ये आप यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर लगा के स्क्रू को घुमाइए इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. तो जैसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो इसका टिप किधर की ओर जाएगा, इट विल मूव्स इन वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल इहेड डायरेक्शन. तो डायरेक्शन इन विच द स्क्रू इज मूविंग, the direction in which the screw is advancing
is the direction of new vector C is the direction of vector A cross B. So you can see the direction of this vector A cross B or vector C can be determined by using the right-handed screw rule. As I have written, keep the head of the screw in a plane of vector A and vector B, and tip of the screw is perpendicular to this plane, like this one. So this is vector A, this is vector B, and as you want to rotate the first vector A towards the vector B, so it will be in anti-clockwise direction. ये दूसरा भी डायग्राम है, ये वेक्टर A को वेक्टर B की ओर घुमाना है, और घुमाने से स्क्रू जिस डायरेक्शन में मूव होता है उसी डायरेक्शन वेक्टर C की, उसी डायरेक्शन वेक्टर A क्रॉस B की. And if we rotate the head in the direction from A to B, then the tip of the screw moves in the direction is called the direction of vector C. There is another method. Another method is which one? It is a right hand method. Consider your right hand like this one. Out of then, in this right hand, there are fingers and thumb. So now you have to keep the right hand and you have to stretch, or you have to open up the palm of the right hand, and thereafter you have to envelope or you have to curl your fingers in the direction from vector A to vector B. तो आपका वेक्टर A इस डायरेक्शन में है, वेक्टर B इस डायरेक्शन में है, तो सारी फिंगर्स A की डायरेक्शन में रखेंगे, उसको आप घुमाएंगे B की ओर, और ये आपका थंब स्ट्रेच थंब रखेंगे. तो ये जो स्ट्रेच थंब है वो थंब क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर C. तो अनदर मेथड इज राइट हैंड मेथड, और ओपन अप योर राइट हैंड palm and curl यानी envelope your fingers pointing from vector A to vector B. Then your stretched thumb shows the direction of vector C, that is direction of vector A cross B. Thereafter we see this cross product A cross B. तो यहाँ पे cross किस लिए रखा है? In order to denote the vector product of two vectors, we are using a cross between the two vectors. That's why this vector product is also being known as a cross product. The vector product is also being known as a cross product because cross is used between the vector A and vector B. Then properties of the vector product. There are at least 7 properties. First one, A cross B is not equal to B cross A. आपको याद हो तो स्केलर प्रोडक्ट में A डॉट B इक्वल टू B डॉट A होता था, लेकिन यहाँ पर A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A. क्यों? क्योंकि A क्रॉस B के लिए वेक्टर A को B की ओर घुमाना पड़ेगा. अगर ये आपका वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, तो वेक्टर A को B की ओर घुमाएंगे तो आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिलती है, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से स्क्रू को घुमाने से वो अपवर्ड जाता है, इसलिए अपवर्ड डायरेक्शन इस वेक्टर A क्रॉस B मिलती है, यानी कि वेक्टर C मिलती है. लेकिन B क्रॉस A चाहिए तो वेक्टर B को पकड़ के A की ओर घुमाना पड़ेगा, तो डायरेक्शन ऑटोमेटिकली ऑपोजिट हो जाएगी. B से घुमाएंगे तो आपको डायरेक्शन कौन सी मिलेगी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिलेगी. और इसी स्क्रू को इस तरह से स्क्रू ड्राइवर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो स्क्रू कहां पे मूव होगा? इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन है. आप इसको अगर y एक्सिस कहते तो आपको क्या मिलेगी? नीचे की डायरेक्शन -y मिलेगी. That's why A cross B is not equal to B cross A, but A cross B can be written as minus of B cross A, क्योंकि B cross A is equal to क्या? B cross आपको कैसा मिलेगा? नीचे की डायरेक्शन में, तो नीचे की डायरेक्शन में मतलब नेगेटिव 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 क्या मिल जाएगा आपको? पॉजिटिव. That means A cross B equal to always minus B cross A. यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट में आप ऑर्डर चेंज करते हैं तो आगे नेगेटिव साइन आ जाती है. तो thus if E cross B is equal to vector C, then B cross A will be equal to minus यानी कि नेगेटिव वेक्टर C. Then second property is distributive law. Vector product is distributive with respect to vector addition, and that we have seen also in scalar product. तो here vector A cross vector B plus C in bracket equal to vector A cross B plus vector A cross C. और वही हमने स्केलर प्रोडक्ट में देखा था A डॉट वेक्टर B plus C equal to A dot B plus A dot C. Then third one, if the two vectors are parallel, मतलब दोनों वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में है, या तो दोनों वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में है पैरेलल, तो एंगल दोनों के बीच का 0,
ऑपोजिट डायरेक्शन में है, एक इस डायरेक्शन में है और दूसरा इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल कितना मिलेगा 180 डिग्रीज देयर. And you know sin 0 is always 0, sin 180 is 0. That's why the vector product of such two vectors, ऐसे two vectors, either they are parallel or anti-parallel, is always be 0. If two vectors are parallel, that is theta equal to 0 between them, or anti-parallel, yani theta equal to 180 degree, then their vector product is always 0, because sin 0 is 0 and sin 180 is also 0. Now there is a fourth property. If vector A is perpendicular to vector B, यानी दोनों वेक्टर आपस में एंगल 90 डिग्री बनाते हैं, परपेंडिकुलर, then theta is 90 degree. तो what will be A cross B? तो A cross B equal to AB sin 90 into unit vector n equal to simply AB into unit vector n. यानी कि A cross B is equal to कैसा मिलेगा? AB जितना मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर n क्या बताएगी? डायरेक्शन. कैसी डायरेक्शन? वेक्टर A एंड B से बनता हुआ प्लेन को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मिलेगा. देन वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स. कौन से यूनिट वेक्टर्स? यूनिट वेक्टर्स I, J एंड K. तो अगेन यू कैन कंसीडर दिस इज थ्री डायमेंशनल प्लेन इज देयर, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस. along x एक्सिस यूनिट वेक्टर I, along y एक्सिस यूनिट वेक्टर J, along z एक्सिस यूनिट वेक्टर K. अब ये तीनों एक्सिस कैसी है? आपस में परपेंडिकुलर, इसीलिए I क्रॉस J लेते हैं, तो ये I क्रॉस J. तो I क्रॉस J का बनता हुआ ये आपको वर्टिकल प्लेन मिलेगा, और ये वर्टिकल प्लेन को परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी मिलेगी? z एक्सिस की. एंड along z एक्सिस कौन सा यूनिट वेक्टर है? K. तो I क्रॉस J इक्वल टू यूनिट वेक्टर K. जिस तरह से मैथमेटिक्स में होता है A इंटू बी इक्वल A क्रॉस B इक्वल टू C, B क्रॉस C इक्वल टू A एंड C क्रॉस A इक्वल टू B. तो इसी तरह से तीनों आपको याद रखना है इन ऑर्डर में. I क्रॉस J इक्वल टू यूनिट वेक्टर K. वाई? क्योंकि आपस में परपेंडिकुलर है, इसलिए I का यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, J का भी 1, तो 1 इंटू 1. लेकिन वो होगा किस डायरेक्शन में? z एक्सिस की डायरेक्शन में. एंड z एक्सिस की डायरेक्शन में कौन सा यूनिट वेक्टर? K. इसलिए I क्रॉस J इक्वल टू K. सेम वे J क्रॉस K, तो ये प्लेन मिलेगा, इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, तो J क्रॉस K इक्वल टू यूनिट वेक्टर I. एंड देन z एक्सिस क्रॉस x एक्सिस मतलब K क्रॉस I इक्वल टू यूनिट वेक्टर J. तो दैट विच I have written here. तो be remember I क्रॉस J इक्वल टू यूनिट वेक्टर K, J क्रॉस K इक्वल टू यूनिट वेक्टर I एंड K क्रॉस I इक्वल टू यूनिट वेक्टर J. लेकिन जैसे ही आगे आपको बताया, अगर इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो आंसर क्या मिलेगा? नेगेटिव. तो I क्रॉस J इक्वल टू K, इट मीन्स J क्रॉस I, पहले J लिखिए, तो J क्रॉस I इक्वल टू माइनस K. J क्रॉस K इक्वल टू I, इट मीन्स K क्रॉस J इक्वल टू माइनस I. K क्रॉस I इक्वल टू J, it means I cross K equal to minus J. But if you take both the unit vectors are in same direction, x एक्सिस के डायरेक्शन ये भी यूनिट वेक्टर I, दूसरा भी यूनिट वेक्टर I, तो दोनों के बीच का एंगल 0, तो आंसर क्या? क्रॉस प्रोडक्ट 0. तो I क्रॉस I इक्वल टू 0. सिमिलरली J क्रॉस J इक्वल टू 0. सिमिलरली K क्रॉस K इक्वल टू 0. It means I cross I equal to J cross J equal to K cross K equal to answer is 0. And this thing you have to remember very well, not only for 12th standard, it is also very useful for 12th standard, and you have to use it for solving some numericals. Now vector product of two vectors in terms of Cartesian components. Cartesian components मतलब vectors given in terms of x component, y component and z component. तो let vector A equal to axi plus ayj plus azk. तो ax, ay, az are three components of vector A. Vector B equal to bxi plus byj plus bzk means bx, by and bz are the three components of vector B. Then A cross B equal to first bracket में vector axi plus ayj plus azk cross second bracket में bxi plus byj plus bzk. तो अब यहाँ पे ax का प्रोडक्ट ये तीनों के साथ बारी बारी प्लस ay का प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट
ये तीनों कंपोनेंट के साथ प्लस ए जेड का क्रॉस प्रोडक्ट ये तीनों कंपोनेंट के साथ, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो पहले ये ए एक्स आई क्रॉस बी एक्स आई, तो जहां पर सफिक्स एक्स एक्स है मतलब उसके यूनिट वेक्टर्स आई आई है, जहां पे सफिक्स वाई है वहां पे यूनिट वेक्टर जे है, जहां पर सफिक्स जेड है वहां पे यूनिट वेक्टर के है। तो इतना ध्यान रखोगे तो ऑटोमेटिकली किस किस दो यूनिट वेक्टर के बीच का प्रोडक्ट होगा वो आपको मिलेगा। तो जैसे यहाँ पे ए एक्स बी एक्स, तो ब्रैकेट में आई क्रॉस आई प्लस ए एक्स बी वाई, ब्रैकेट में आई क्रॉस के प्लस ए एक्स बी जेड, तो ब्रैकेट में आई क्रॉस के। तो ये ए एक्स का बी एक्स बी वाई बी जेड के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। अब ए वाई की बारी, बी एक्स बी वाई बी जेड के साथ, बाद में ए जेड की बारी, तो दूसरा टर्म्स ए वाई बी एक्स, तो ए वाई का मतलब जे क्रॉस आई प्लस ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे प्लस ए वाई बी जेड जे क्रॉस के। अब ए जेड की बारी, तीनों कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर बी के साथ, तो ए जेड बी एक्स मतलब के क्रॉस आई प्लस ए जेड बी वाई ब्रैकेट में के क्रॉस जे प्लस ए जेड बी जेड ब्रैकेट में के क्रॉस के। अब जहां पे दोनों सेम काइंड ऑफ यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है तो आंसर जीरो। तो जिसमें से पहले तीन में से आई क्रॉस आई जीरो, दूसरे तीन में से जे क्रॉस जे जीरो और ये तीसरे तीन में से के क्रॉस के जीरो, मतलब ये जीरो, तो बाकी यहाँ पे पहले तीन में से दो मिलेंगे, दूसरे तीन में से दो, तीसरे तीन में से दो। तो कौन कौन से दो, तो ये ए एक्स बी एक्स आई जीरो हो गया, लेकिन ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे यानी के, तो क्या ए एक्स बी वाई के प्लस ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के इक्वल आपको क्या मिलेगा माइनस ऑफ जे मिलेगा ये। तो ए एक्स बी वाई इंटू यूनिट वेक्टर के प्लस ए एक्स बी जेड इंटू यूनिट वेक्टर माइनस के। इसी तरह से यहां पर आपको ए वाई बी एक्स, तो जे क्रॉस आई का वैल्यू मिलेगा माइनस के प्लस इसका ए वाई बी जेड जे क्रॉस के का वैल्यू मिलेगा आई, देन प्लस ए जेड बी एक्स, तो के क्रॉस आई का वैल्यू आपको मिलेगा जी, ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई इक्वल क्या होता है जे इज देयर, तो दिस इज ए जेड बी एक्स यूनिट वेक्टर जी प्लस ए जेड बी वाई, तो ये आपका ए जेड बी वाई के क्रॉस जे इक्वल टू व्हाट माइनस ऑफ आई मिलेगा, के क्रॉस जे इक्वल माइनस आई। तो ये आपका तीन। अब यहाँ पे आपको इसमें से दो आई आई यूनिट वेक्टर वाले, दो जे जे यूनिट वेक्टर वाले एंड दो के यूनिट वेक्टर वाले को साथ में लीजिए। तो पहले हम यहाँ पे लेते हैं आई आई वाले, तो आई आई वाले कौन है देखिए यहाँ पर ए वाई बी जेड इंटू यूनिट वेक्टर आई, और ये कौन सा है ए जेड बी वाई इंटू यूनिट वेक्टर माइनस आई, तो इसमें से आई कॉमन रहेगा, तो ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई इंटू यूनिट वेक्टर आई। सिमिलरली प्लस ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड इंटू यूनिट वेक्टर जे प्लस ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स इंटू यूनिट वेक्टर के। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे एक्चुअली ये है पूरा 3/3 डिटर्मिनेंट का एक्सपांशन, दैट्स व्हाई ए क्रॉस बी इक्वल दिस इज डिटर्मिनेंट की साइन 3/3 डिटर्मिनेंट, जिसमें फर्स्ट रो में यूनिट वेक्टर आई जे के, सेकंड रो में वेक्टर ए के कंपोनेंट्स ए एक्स ए वाई ए जेड एंड थर्ड रो में वेक्टर बी के कंपोनेंट्स बी एक्स बी वाई बी जेड। इसका एक्सपांशन इक्वल क्या, तो यहाँ पर आपको आई के साथ लेना है, तो ये आई जिस कॉलम में है एंड जिस रो में है उनको आप दबा दीजिए, तो 2/2 डिटर्मिनेंट मिलेगा। तो आई इक्वल आप देखेंगे क्या मिलेगा ए वाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई बराबर, तो आप देखेंगे ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई इंटू आई, फिर माइनस जे के साथ लिखने का, माइनस जे कहाँ पे दूसरे कॉलम में, तो दूसरे कॉलम को दबा दीजिए एंड फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो दबा दीजिए, तो फर्स्ट रो एंड दूसरा कॉलम, तो बाकी जो बचा उसका क्रॉस प्रोडक्ट ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स बराबर, लेकिन यहाँ पे माइनस जे लिखने का प्लस अब यूनिट वेक्टर के, तो के कहाँ पे थर्ड कॉलम में, थर्ड कॉलम दबा दीजिए और इसका ये फर्स्ट रो दबा दीजिए, तो बाकी में दो 2/2 डिटर्मिनेंट क्रॉस प्रोडक्ट, तो यहाँ पे क्या मिलेगा ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, तो प्लस यूनिट वेक्टर के इंटू ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स इंटू ए वाई। तो दिस इज ए क्रॉस बी इक्वल टू, यानी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज बी इक्वल टू 3/3 डिटर्मिनेंट, जिसमें पहली रो में यूनिट वेक्टर आई जे की,
दूसरी रो में वेक्टर ए के कंपोनेंट्स पहले वेक्टर के, एंड तीसरी रो में दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट्स. नाउ एग्जांपल नंबर 7.4, obtain the scalar product and vector product between the two vectors. Vectors are given. Vector A equal to 3i minus 4j plus 5k, वेक्टर b इक्वल टू माइनस 2i प्लस j माइनस 3k. तो यहाँ पे वेक्टर a डॉट b इक्वल क्या है, एज यू नो, ax bx प्लस ay by प्लस az bz, मतलब xx कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट प्लस yy कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट प्लस zz कंपोनेंट. तो यहाँ पे ये ax कितना है 3, ay कितना है -4, az कितना है +5, यहाँ पे bx है -2, by है +1 एंड bz है -3. तो ये +3 इंटू -2, ये +-4 इंटू +1 और ये +5 इंटू -3. तो 3 इंटू -2 प्लस -4 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -1 प्लस 5 इंटू -3. तो आंसर इज -6 -4 -15 -25. देन वेक्टर प्रोडक्ट, तो वेक्टर प्रोडक्ट a क्रॉस b इक्वल टू i j k ax ay az bx by bz इक्वल टू i j k. तो ax की जगह 3, ay की जगह -4, az की जगह +5, bx की जगह -2, by की जगह +1 एंड bz की जगह -3. अब इसका एक्सपांशन करें तो i यहाँ पर ये पहले कॉलम में और ये पहली रो, तो किस किस का प्रोडक्ट, -4 इंटू -3 बिकमिंग +12 एंड ये +5 इंटू 1 बिकमिंग 5. तो -5 करने का, तो +12 -5 इंटू यूनिट वेक्टर आई माइनस. अब j के साथ, तो j के साथ किसका, तो j कहाँ पे, दूसरे कॉलम में. तो दूसरा कॉलम दबा दो, पहली रो दबा दो, तो बाकी बचे उसका प्रोडक्ट. तो 3 इंटू -3 तो -9 और ये 5 इंटू -2 -10, लेकिन माइनस माइनस करना है. तो -9 माइनस प्लस 10 इंटू जी प्लस. अब यहाँ पे k के साथ, तो k किस में है, थर्ड कॉलम में एंड पहली रो में, दबा दिया तो यहाँ पे मिलेगा 3 इंटू 1 3 और ये -4 इंटू -2 बिकमिंग +8 हो गया बराबर. लेकिन वो माइनस करना है तो आपको क्या करें मिलेगा, तो प्लस ब्रैकेट में 3 - 8 इंटू यूनिट वेक्टर k. तो दिस इज 12 - 5 7 है, ये -9 + 10 1, लेकिन आगे माइनस साइन है तो क्या मिलेगा -j, और ये 3 - 8 -5 तो -5k. तो thus a क्रॉस b इक्वल टू 7i -j -5k. इफ यू वांट टू गेट b क्रॉस a, तो b क्रॉस a कैसा होगा, इसका नेगेटिव, इसलिए जो पॉजिटिव और नेगेटिव कर दो, नेगेटिव और पॉजिटिव कर दो. तो b क्रॉस a इक्वल टू -7i + j + 5k.